Hello friends, my name is Rajiv Soni. I'm the CEO and founder of RG International, and today we are having the renowned architect, urban planner and academician, researcher, influencer behind music and sport person, Miss Dhruvita Mahita. Hello Miss Dhruvita, how are you? I'm fine, and it's really an honor to be over here. And there were a lot of students, asking me so many questions, Right. and I think we had a lot of chats over phone. Yes. And that's why I thought, like, why not we discuss this online? That's true. That would help all the students, with their queries. So, that's the reason, like I said, okay, better you come here and we can have like all this discussion on live. So, like we can help so many students with all their queries and questions. So, are you ready with that? Yeah, we're totally excited about right. it. Yeah. Great. So I think the first question and the very interesting thing which you did in Surat right now was that an expo for education. Yes. So how did this unique thought of having an expo for education came in your mind, and why? It's a very good question, Dhruvita ji. देखिए ऐसा था ना कि like it's been almost like 2 years with the COVID situation, and recently we are into we feel like we're back to our normal life. True. So I thought ki why not, there are so many students who've been struggling with their admissions, their visa process, and with so many small queries. मैंने सोचा कि we have so many partners, universities, so why don't we can do a global education expo, where we can invite all of our partner universities, and we create the opportunity for students where they can have direct discussion, direct evaluation from the university itself. So यही एक सोच के साथ हम लोगों ने ये अप्रोच किया, और we organized global education expo in 2 different cities, in Surat and in Vadodara. Oh wow. Yes. So बस यही एक सोच के साथ हमने किया, and people were very happy. Yeah, I can definitely see that, because there were so many people even after the expo. I think the aura was still on. So many people, Yes. Still messaging on that portal of yours. Yes, even today even like every day we are having so many students, parents, and they are watching our videos, and बहुत सारे ऐसे हैं कि जिनकी वजह से बहुत सारे बच्चों को ये हेल्प हुई, और सितंबर इनटेक आ रहा है तो बहुत सारे क्वेरीज बच्चों की सॉल्व होके नाउ दे आर विद देयर एडमिशन प्रोसेस, एंड काफी बच्चों की एप्लीकेशंस भी चल रही है उसमें से. So I think I must say it was a fantastic and the most successful expo. It was a blockbuster. Yeah. I think one more question I would like to say is, Please. how many universities participated in this expo, and what sort of benefits can these students get by attending such expos? देखिए, there were over 130 plus universities who participated into this global education expo, and they were from USA, Canada, UK, Ireland, and from many other European universities, European countries. And अगर मैं benefit देखने जाऊँ ना, तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कई बार बहुत कंफ्यूज है, इवन दो वो एक एजेंसी दूसरी एजेंसी, एक काउंसलर दूसरे काउंसलर्स, दे हैव वेरी यूनिक क्वेरीज, और बहुत सारे ऐसी छोटी छोटी चीज़ें होती है ना, बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं. तो यही एक सोच के साथ हम लोगों ने एक एजुकेशन एक्सपो ऑर्गेनाइज की, जहाँ पे बच्चे को ये अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो डायरेक्ट यूनिवर्सिटी के साथ, यूनिवर्सिटी के रिप्रेजेंटेटिव के साथ वो बैठे, उनसे बात करें, उनकी क्या क्वेरीज है, क्या कोर्स पढ़ना चाहते हैं, कहाँ पे दिक्कत है, आइल्स में, विदाउट आइल्स क्या ऑप्शंस है, पूरा एवेल्युएशन कराना उनकी प्रोफाइल का. ठीक है. बहुत सारे ऐसे बच्चे भी जिन्होंने वो एजुकेशन फेयर के दिन वहाँ पे उन्होंने स्पॉट एडमिशन भी लिया. वैसे यस, दे वर लाइक माउंट एलिसन यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्दर्न ब्रिटिश कोलंबिया. सो ऐसे बहुत सारे थे जहाँ पे बच्चे पेरेंट्स के साथ आए हुए थे, वहीं पे इवेल्यूएशन किया, और वहीं पे उनके एकेडमिक के सेट सबमिट करा के दे गॉट द कूपन जो स्पॉट एडमिशन के लिए होती है. ठीक है. तो यस, सो इट वाज वेरी गुड, एंड स्टूडेंट्स को यही एक बेनिफिट होता है कि उनको सीधा अपॉर्चुनिटी मिलता है डायरेक्टली टू टॉक विद द यूनिवर्सिटी ऑफिशियल पीपल, और वो उनके लिए एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी है.
I must say that. Oh wow! And I think I saw a lot of different booths for different countries. Yes, they were all different based, like for US, Canada, UK, Ireland, Europe. Even we organize, like a counter for education loans. Oh. Yes, जो बच्चे education loan लेके पढ़ाई करना चाहते हैं, तो like they were like banks were invited, like ICICI Bank, Bank of Baroda. तो ये भी एक था उनके लिए ऑप्शन कि अगर वो रिलेटेड भी कोई डाउट है तो हम लोग वो डाउट भी क्लियर कर ले उनका. बैंक भी वहीं पे थी, सब कुछ मतलब it was very everything on a single plate. Everything was under one roof and it was very well organized. Yes, I must say that. I think one more question. Many students are always asking me, and even I am also wanting to know from one of the most experienced person for this field, is that which program should a student apply for? So undergraduate or the postgraduate? Very good question. ये स्पेशली जो पेरेंट्स ये देख रहे हैं वीडियो, प्लीज़ ये आपके लिए बहुत अच्छा मैसेज भी है. देखिए, जो बच्चे अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए जा रहे हैं, मेरा ये मानना है कि अगर आप प्लान कर रहे हो एब्रॉड स्टडी के लिए, ठीक है, तो आप 12th कंप्लीट करने के बाद आप प्रीफर करें. रीज़न इज़ कि जब तक बच्चा 12th स्टैंडर्ड में होता है ना, तो एक स्कूल से कंप्लीट उसने 12th किया, एक डिसिप्लिन होती है, ठीक है, बहुत सीरियस होते हैं बच्चे कि भाई पढ़ाई कर ली है, ठीक है ना, अभी क्या करेंगे. तो वो एक ऐसा बच्चे का माइंड सेट होता है ना कि भाई मेरे पेरेंट्स ने मेरे पीछे इतना इन्वेस्टमेंट किया है, ट्यूशन फीस मेरी पे की हुई है. तो वो एक बच्चा एक ऐसा जोन में होता है ना कि वो बहुत सीरियस होता है हर चीज़ के लिए, ठीक है, और वही चीज़ बच्चे को बहुत आगे लेके जाती है, क्योंकि वो बच्चे की एज होती है 18-19 साल की. तो ये एज में बच्चा हायर एजुकेशन के लिए जाएगा. अगर कनाडा जा रहा है, डिप्लोमा, एडवांस डिप्लोमा, बैचलर, 3 ऑप्शंस है. यूके के लिए जा रहा है, यूएस के लिए जा रहा है, सीधा 3 साल 4 साल का बैचलर्स ऑप्शन. बाय द टाइम बच्चा 22 साल का होता है ना, उसकी पढ़ाई कंप्लीट हो चुकी होती है, और वहीं पे बच्चा सीधा फिर वो अपना जॉब्स या फर्दर स्टडीज़ के लिए, मतलब वो एक ऐसे एज के हिसाब से ऐसा सेट हुआ होता है ना कि वो बहुत सीरियस होकर चलता है, वो दिक्कत नहीं होती. और यही बच्चा अगर इंडिया में ग्रेजुएशन कंप्लीट करता है, फिर मास्टर्स के लिए जाता है, तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि सारे बच्चे, बट देयर आर परसेंटेज कि जहाँ पे बच्चे कॉलेज की लाइफ, एक फ्रीडम, मोबाइल फोन्स, दोस्तों के साथ ये गप्पे मारना, घूमना, तो वो जो एक होता है ना, वो स्कूल वाला जो कि एटीट्यूड ऑफ लर्निंग, यस, वो निकल जाता है. और उसकी वजह से बच्चे कई बार कैसे होता है, जितने सीरियस होने चाहिए ना, उतने सीरियस नहीं होते. और उसकी वजह से कई बार हमारे पास ऐसे भी बच्चे आते हैं कि भाई वो जो हम लोग अलग थोड़े ट्रैक पे भी, ऑफ ट्रैक भी हो जाते हैं. तो मतलब मैं इसीलिए थोड़ा पर्सनली ये बताता हूँ हर पेरेंट्स को कि अगर आप अपने बच्चे को फर्दर स्टडीज़ के लिए भेजना चाहते हैं, तो आफ्टर 12th स्टैंडर्ड बहुत बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ है. और काफ़ी अच्छी एज में बच्चे पढ़ाई ख़त्म कर लेते हैं, उसके बाद पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा मिल जाता है, और उनको परमानेंट रेसिडेंसी के लिए भी उनको ग्रेट अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है. और दूसरा कि वहाँ पे जो कंपनीज भी होती है, जो कॉर्पोरेट्स कंपनी जो बच्चे को रिक्रूट करते हैं, बच्चे की एज कम होती है ना, बच्चे के लिए अपॉर्चुनिटी भी बहुत बढ़ जाती है. हाँ, वो भी एक बहुत मतलब ये भी बहुत मैटर करता है. तो ये सारे छोटे छोटे चीज़ों को ध्यान में लेते हुए अगर मैं गाइड करूँगा, तो डेफिनेटली मेरा ये मानना है कि आफ्टर 12th ग्रेड बच्चा जाएगा तो उसके लिए अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा रहती है. और पेरेंट्स के लिए भी ये एक अच्छा मतलब है कि माइंडसेट कि आप आगे जाके कोई दूसरी टेंशन नहीं रहेगी पेरेंट्स को. So I think you've cleared one of the biggest questions I think everybody has. दूसरा एक इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है that which countries offer PR like permanent residency? Right. See, PR में मैडम ऐसा है ना कि सारी कंट्रीज अगर मैं देखूँ तो जैसे मोस्ट पॉपुलर तो एक कनाडा है, कनाडा PR देती है, ठीक है. और जो भी बच्चे कनाडा जाते हैं उनका एक माइंडसेट है कि भाई कनाडा PR देता है, इसीलिए मैं कनाडा जा रहा हूँ. कनाडा के बाद अगर मैं कोई दूसरी कंट्री देखूँ जो PR बहुत इजीली दे रही है आजकल, तो फिनलैंड है. हाँ, फिनलैंड के अंदर, फिनलैंड एक ऐसा कंट्री है कि जिसमें दुनिया में एक ही ऐसा कंट्री है जो 100% जो स्टडी ड्यूरेशन होता है वो PR के लिए काउंट करता है. कनाडा, UK, US कोई काउंट नहीं करता है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड कोई काउंट नहीं करता है. फिनलैंड में एग्जाम्पल, अगर अभी जैसे मैंने बताया कि आफ्टर 12th ग्रेड बच्चा फिनलैंड जाता है, तो फिनलैंड में 4 साल की बैचलर्स होती है. तो सबसे पहला बेनिफिट है बच्चे को
कि उसको 4 साल का वीज़ा मिलेगा, ठीक है। दूसरा कि जैसे उसकी पढ़ाई खत्म होती है उसको 2 साल का पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा मिलता है। तीसरा, उसका टाइप ए परमिट होने की वजह से वहाँ की गवर्नमेंट 4 साल के स्टे के बाद, मतलब 4 साल की पढ़ाई के बाद सीधा बच्चा अप्लाई कर सकता है परमानेंट रेसिडेंसी के लिए। मतलब सिक्योर। यस, मतलब 22 साल की एज में बच्चा पीआर हो जाएगा बैचलर्स कंप्लीट करने के बाद। तो एक कनाडा है, फिनलैंड है, बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज है, ठीक है, जैसे आयरलैंड है, यूके भी है। यूके में आप पढ़ाई के बाद 2 साल का पोस्ट स्टडी वर्क लेके अगर आप ऑन फील्ड आप जॉब ढूंढ लेते हो एटलीस्ट 20,000 पाउंड्स पर एनम की, तो आपके लिए भी बहुत सारे ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं परमानेंट रेसिडेंसी के लिए। यूएसए है, यूएसए में अगर आप स्टेम प्रोग्राम में जाते हो तो स्टेम प्रोग्राम में आपको 36 मंथ्स की ओपीटी मिलती है। ओपीटी के बाद अगर आपको एम्प्लॉयर स्पॉन्सर मिल जाता है तो यू कैन स्टिल स्ट्रेट अवे यू कैन कन्वर्ट इनटू H1, H1B, और H1B में होने के बाद 3 साल के बाद यू कैन अप्लाई फॉर योर ग्रीन कार्ड। सो बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस ओपन है। तो अगर मैं कंट्रीज के नाम बताऊँ तो कनाडा है, फिनलैंड है, यूके है, बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज है, यूएसए है। बट आपका एक फोकस होना चाहिए कि कितनी जल्दी मिल रहा है, ये एक मैटर है। कंट्रीज तो बहुत सारी है जो दे रही है, बट कितना फास्ट प्रोसेस और कितना स्मूथ प्रोसेस है, ये अगर आप हमारे काउंसिलर से आप अपॉइंटमेंट लेके अगर आप 1-on-1 अगर आपका सेशन एक बुक करोगे, आपको बहुत डिटेल में मेरी टीम आपको एक्सप्लेन करेगी सारे कंट्री वाइज। Right, and I'm sure, I think the knowledge all of your team member have, they will definitely guide all of them perfectly to their point. They are very professional and they are very well trained and like उनको they are very well updated as well with the rules and regulations. शिष्य तो obviously गुरु जैसे होने वाले। One most important question. Everybody has a thought, a pre-judgment about going abroad that it will be very costly. Whether I'll be able to afford it or not, and what is the minimum fee then basically? This is a really very good question. I must say that, guys, abroad education, it's expensive. Okay, this is just a myth. Okay. Really? Yes, this is just a myth. अगर आप, जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि मैं नाम नहीं दूंगा, बट सूरत के अंदर एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, सूरत सिटी के अंदर है, ठीक है, जिनकी एवरेज ट्यूशन फीस 3 लाख रुपए है साल की। बच्चा अगर सूरत से बेंगलोर जाता है, बॉम्बे जाता है, पुणे जाता है, ठीक है, तो एवरेज ट्यूशन फी 4-4.5 लाख रुपए रहेगी। मतलब आप इंडिया के अंदर भी अगर आप यहाँ से आप बैचलर्स या मास्टर्स करते हो, the minimum tuition fee would be like more than 3 lakh rupees. In Europe, there are so many countries, okay, जहाँ पे आपकी tuition fees शुरू होती है 1.5 lakh Indian rupees. That's it. That's it. 1.5 लाख रुपए में आपका 1 साल का पूरा ट्यूशन फीस आ जाता है, और वो भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, पब्लिकली फंडेड यूनिवर्सिटीज। उसके साथ, ठीक है, ये शेंगन वीजा आता है उसमें, जिसमें आप 28 कंट्री ड्यूरिंग योर स्टडी, ठीक है ना, आप कभी भी वीकेंड आप ट्रैवल कर सकते हो। दूसरी बात, लिविंग कॉस्ट उसका बहुत कम होता है। आप इंडियन करेंसी में 15 से 20 हज़ार रुपये में आपका 1 महीने का एकोमोडेशन, फूड, ट्रांसपोर्टेशन सारी कॉस्ट कवर हो जाती है। तीसरी बात, यू कैन वर्क 20 आवर्स ड्यूरिंग द वीक्स एंड फुल टाइम ड्यूरिंग द वैकेशन, ठीक है ना, जब आपकी पढ़ाई चालू हो आप 20 घंटे काम कर सकते हो। दैट मीन्स आपका खर्चा जो है आपके पेरेंट्स से आपको लेना नहीं है, आप खुद अपने आत्मनिर्भर बन के आप डेफिनेटली आप कर सकते हो। तीसरा, आप जैसे पढ़ाई खत्म होती है आपको मिनिमम 1 साल से लेकर 2 साल तक का आपको वहाँ की गवर्नमेंट पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा देती है। पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा आप जैसे करते हो आपको जॉब मिल जाती है आपकी फील्ड की, जो फील्ड की आपने पढ़ाई खत्म की है। उसके बाद अगर आपका जो एम्प्लॉयर है अगर आपको वर्क कॉन्ट्रैक्ट आपका एक्सटेंड करता है, तो आप अपना वीज़ा वापस एक्सटेंड करवा के आप 5 साल आप जॉब करो, 5 साल के बाद यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द परमानेंट रेसिडेंसी। सो गाइस, अगर आप मास्टर्स के लिए कोई बच्चा जा रहा है तो 3 लाख रुपए में उसका मास्टर्स कंप्लीट हो जाएगा। ये मिनिमम शुरुआत है, ठीक है, बट आप 1.5 लाख से लेकर 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख, अगर ऐसी भी कंट्रीज है जहाँ पे 6 लाख, 8 लाख, 10 लाख ट्यूशन फीस है, वहाँ पे बहुत सारी स्कॉलरशिप्स भी है। अगर आप स्कॉलर हो, आपने अच्छे आईएलटीएस के स्कोर किए हुए हैं,
तो डेफिनेटली यू कैन अप्लाई फॉर द स्कॉलरशिप्स. स्कॉलरशिप्स में फ्री एजुकेशन से शुरू होता है, ठीक है. अगर 50% भी मिलता है तो 3-3.5 लाख रुपए में आप अच्छी कंट्री में विद योर स्कॉलरशिप यू कैन कंप्लीट योर ग्रेजुएशन, यू कैन कंप्लीट योर मास्टर्स. So there are plenty of opportunities. Or the fees starts as little as 1.5 lakh Indian rupees. ठीक है, तो आप you must visit one of our nearest office. ठीक है, आप जहाँ पे भी हो, काफ़ी सारी डिटेल्स आपको मिलेगी यहाँ पे. ये वीडियो के नीचे आप देखोगे तो पूरी हमारी ब्रांचेस, वेबसाइट, सारी इन्फॉर्मेशन है. आप हमारी वेबसाइट विजिट करिए www.rginternational.org एंड सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आप मिल लीजिए वहाँ से. एंड यू कैन बुक योर अपॉइंटमेंट विद वन ऑफ आवर काउंसलर्स to know more about all these countries, tuition fees, visa success, admissions, everything. Oh my God! So it is like a complete world of knowledge you have, and if students really want, then I think opportunities are innumerable. Yes. उसमें कोई बात नहीं है. मतलब 100% स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, स्पेशली देखो बहुत सारे ऐसे मिडिल क्लास के बच्चे होते हैं कि उनको डेफिनेटली हर एक पेरेंट्स चाहते हैं कि उनका बच्चा एब्रॉड में जाके स्टडी करे, अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले बच्चे को, अच्छी जॉब्स करे और सेटल हुए, ठीक है. बट कई बार मीत की वजह से कि भाई हम लोग नहीं कर पाएंगे, तो आप ऐसा मत सोचिए कि एक बार आप प्लीज़ RG इंटरनेशनल विजिट करिए, ठीक है ना. आई एम श्योर कि हम 100% ऐसा ट्राई करेंगे कि आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए और आपके बच्चे को, ठीक है, या हर स्टूडेंट्स को कम से कम ट्यूशन फीस में हम उसको अकोमोडेट कर पाए हर यूनिवर्सिटीज़ में. That's all I think everybody would want. So first of all, I would also like to congratulate you for this amazing achievement of getting the Shiksha Award for excellence in overseas education by ZTV 24 hours. Yes, recently, yes. So really, it's an amazing achievement, so much. And I'm sure that a person having such great knowledge is perfectly, giving you such amazing tips and clearing out so many doubts. So it was really an honor to share these moments with you. Thank you so much, Zubeda ji, and I'm sure कि like all those questions you had, like मैं उसके आंसर दे चुका हूँ. और अगर आपको और भी guys आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप हमारी वेबसाइट पे जाके आप हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स लेके, आपको ईमेल एड्रेसेस है, फ़ोन नंबर्स है, हेल्पलाइन नंबर्स है, आप यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट अस एंड आई विल बी वेरी हैप्पी to answer all your questions. Okay, thank you. Thank you so much. And Zubeda ji, thank you so much for being with us today. And definitely I'm looking forward कि सारे बच्चों को उनके answers भी मिल गए हो. And you are always welcome. अभी future में भी फिर से कोई भी questions आपको आए तो please feel free to contact us. Thank you. Sure.